أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم वबश्शिर المحسنين। ये कुरान मजीद की 22वीं सूरत है, सूरह हज, उसकी आयत 37 की तिलावत की है। तर्जुमा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुँचता है ना उनका खून, लेकिन उसके पास तुम्हारा तकवा पहुँचता है। उसने ये जानवर इसी तरह तुम्हारे ताबे बना दिए हैं ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की तकबीर करो कि उसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई, और जो लोग खुश असलूबी से नेक अमल करते हैं उन्हें खुशखबरी सुना दो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah khair, Rashid Saab. I welcome everyone on this 76th webinar from the platform of Pakistan Medical Association in collaboration with Women Medical College, Azad Jammu Kashmir Medical College, South Asian Association of Physiologists, Pakistan Physiological Society, and PAPS, which is the Pathological Association of Pakistan. And we are missing our dear host, Professor Dr. Mulazim Saab today, but Dr. Mubashir has taken over. And we warmly welcome Dr. Tahir Siddiqui here, who is a professor of medicine in Lahore. And he is going to tell us about eating meat and its after effects and how to deal with it, because all of us have just been through our Eid al-Adha and everybody has had a lot of meat. Now I invite Professor Dr. Tahir Siddiqui Saab. Please take over, Tahir Saab. Thank you and Assalamu alaikum. I welcome to all of the faculty members and honorable guests. We and the Muslims all over the world celebrated the Eid al-Adha around 29th of this month. At this occasion, which sacrifices animals, and this is being done in a large number because of the inflation all over the world. Majority of our Muslims got meat at this occasion, and this is why we consume the meat at a large quantity. Pakistan mein and in majority of the Muslim countries except Arabs, poverty level जो है वो बहुत ज़्यादा है, और majority of our जो Muslims हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके पास meat throughout the year नहीं होता. At the occasion of Qurbani, either we do the Qurbani or we receive the meat as a gift from some of our neighbors, some of our friends, and we consume it regularly, at least for 5 to 7 days continuously in a large quantity. The consumption of meat in this quantity has certain advantages and certain disadvantages. If we consider the advantages of consuming the milk, consuming the meat, this is only one major advantage, and that is protein is the building block of our body, and it helps to rebuild and to shape up our body. Except the building block contribution of the protein, when we consume it in a large quantity, especially when cooked along with spices, lot of spices and salts, or in hurry when it is partially cooked, it has certain disadvantages as well. जब हम इसको
मीट को, गोश्त को लार्ज क्वांटिटी में खा लेते हैं, इट मीन्स मोर देन 200 ग्राम कंज्यूम कर लेते हैं इन अ डे, और स्पेशली जब वो कुक हुआ होता है विथ lot of spices to make it more palatable, to make it more tasty, or it is partially cooked, it has certain disadvantages, and these disadvantages have either local effects or it has some systemic effects, or certain effects are due to the complications of the systemic effects. We will consider it one by one. Among the local effects, gastritis and acidity is one of the most common presenting complaints of the patients who presented in the emergency after consumption of large quantity of meat. The other one is constipation. After a period of 2 to 3 days with continuous consumption of meat, the patient presents with constipation. This is due to their low fiber intake. वो सब्जियां और फल खाना बंद कर देते हैं। हमारे जो लोग हैं वो फाइबर लेना बंद कर देते हैं, वो मीट ही कंज्यूम कर रहे होते हैं इन ऑल देयर 2 to 3 meals, and they presents with constipation. And the third local effect is indigestion. Again, after consumption of large quantity of milk, especially in elderly people, they suffer symptoms of bloating, abdominal discomfort, and presents with bloating, sometimes with even with vomiting. And the fourth local effect is gastroenteritis, and this symptom is especially after consumption of partially cooked or uncooked meat. जब पेशेंट लार्ज क्वांटिटी में इसे यूज कर लेता है तो वो आइदर लोकल इफेक्ट के साथ एसिडिटी, सीना जलना, मैदे में दर्द का होना उसके साथ प्रेजेंट कर जाता है, या फाइबर ना लेने की वजह से वो कब्ज के साथ आ जाता है, या वो इनडाइजेशन के फीचर ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट उसके साथ आ जाता है, या अनकुक्ड फूड जिसकी वजह से उसे डायरिया, वॉमिटिंग हो जाता है, उसकी वजह से प्रेजेंट करता है। लोकल इफेक्ट के साथ साथ the consumption of large quantity of meat can also present with certain systemic effects. The meat is a major source of purine and pyrimidines, and the patients who have their impaired metabolism of these pyrimidines and purines and have already gout, they present with hyperuricemia, and the major symptoms in the OPD and in the emergency are the joint pain and or the swollen joints. ये मरीज जिनको ऑलरेडी गाउट का प्रॉब्लम होता है और वो मार्जिनली बॉर्डरलाइन चल रहे होते हैं, जब वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीट को कंज्यूम करते हैं तो वो 2 से 3 दिन 4 दिन बाद ओपीडी में प्रेजेंट कर रहे होते हैं स्वेयर जॉइंट पेन के साथ, या उनका कोई ना कोई जॉइंट स्वोलन होता है। द सेकंड सिस्टेमिक इफेक्ट इज द increased cholesterol level. As we all know, red meat is a rich source of fat, cholesterol. When we consume it in a larger quantity, this red meat increase the cholesterol level in our body. And third effect is not purely due to the consumption of meat. It is due to the methods, due to the spices, due to the salt that we add while cooking the meat. The increased quantity of spices and the salts results in an increase in blood pressure. So जो मरीज हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली 3 से 5 दिन लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीट को यूज करते हैं जो कि कुक हुआ होता है विद स्पाइसेस एंड साल्ट्स, दे प्रेजेंट्स विद अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, स्पेशली दोज हु आर हाइपरटेंसिव, हु आर नॉट using their medications regularly, they present even with more severe symptoms. And the fourth systemic effect is the direct effect of the consumption of large quantity of meat, and this is hepatic encephalopathy in patients
who have underlying liver cirrhosis with borderline functions, especially those with decompensated liver cirrhosis. वो मरीज जो कि लिवर सिरोसिस के मरीज होते हैं, जो कि चाय क्लास सी में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब वो ईद के ऊपर मीट की कंजम्पशन बढ़ा देते हैं तो वो प्रेजेंट करते हैं विद अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन द इमरजेंसी. तो दीज आर द फ्यू सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ द मीट. और वो अगर हम इसे समराइज करें तो यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना ड्यू टू द सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ साल्ट्स एंड स्पाइसेस जो कि ऐड किए जाते हैं मीट के साथ, और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी इन दोज हु हैव डिकम्पेंसेटेड लिवर सोर्सेस. अगर हम इसके साथ देखें कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड with the use of meat due to their systemic effects, there are certain complications. वो लोग जिनमें underlying ischemic heart disease होती, when they consume the large quantity of meat, their cholesterol level increase, they have a high blood pressure that can lead to angina in such patients. सो इस्कीमिक हार्ट डिजीज के मरीज जब भी मोर देन 200 ग्राम में यूज करेंगे और उसे 3 से 5 दिन कंटिन्यूसली यूज करेंगे, दे पुट देमसेल्फ प्रोन टू द डेवलपमेंट ऑफ एंजाइना, स्पेशली दोज हु हैव देयर बॉर्डरलाइन हार्ट फंक्शंस. वो पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन है, वो पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, जिनमें ऑलरेडी डिस्लिपिडीमिया चल रहा होता है, when they consume large quantity of red meat, especially cow meat or mutton, they develop hypercholesterolemia and they are prone to the development of myocardial infarction and stroke. So emergency में जो medical emergency है different hospitals की, उसमें ईद उल अजहा के बाद बहुत सारे मरीज प्रेजेंट कर जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ, डिस्लिपिडीमिया के साथ, एंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स प्रेजेंट्स विद angina and stroke are also increased to a little extent. अब अगर हम इनको देखें कि कुछ लोकल इफेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ सिस्टेमिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए? क्या गोश्त को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या गोश्त को इस्तेमाल करना चाहिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट? और अगर करना चाहिए गोश्त को सर्टेन एक्सटेंट तक, तो क्या आइदर अलोन गोश्त को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहिए और इट शुड बी सप्लीमेंटेड विद सर्टेन वेजिटेबल्स और विद फ्रूट्स? तो जो आइडियल कंजम्पशन है मीट की इन अ डे वो 100 से 200 ग्राम है फॉर द हेल्दी अडल्ट्स. वो लोग जो डायबिटिक नहीं है, जो हाइपरटेंसिव नहीं है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज नहीं है, 24 आवर में वो 100 से 200 ग्राम यूज कर सकते हैं. अगर एक पेशेंट है जिसको लिवर सिरोसिस है, उसमें जो प्रोटीन की कंजम्पशन है वो लेस देन 70 ग्राम इन अ डे होती है. इस्कीमिक हार्ट डिजीज में लेस देन 70 ग्राम इन अ डे होती है. ये जो लोग होते हैं जिनमें लिवर सिरोसिस है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज में, साल्ट इंटेक 2 to 3 मिलीमोल पर डे होता है. तो साल्ट को भी आपने रिड्यूस करना होता है. तो ये लोग जो कि अंडरलाइंग ऑलरेडी डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, इस्कीमिक हार्ट डिजीज के लोग हैं, वो जो मीट यूज करेंगे वो 70 ग्राम से कम होगा, वो लो साल्ट में पका होगा, उसमें स्पाइसेस ऐड नहीं हुई हो. अब एक और चीज आती है, बहुत सारे लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं कि जो मीट का यूज है वो डायबिटीज को वर्स करता है. जो डायबिटीज की जो वर्स होता है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, दैट इज नॉट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ मीट. वो किस तरह उसका इफेक्ट आ रहा होता है, उसे कैसे हमने टैकल करना है. जब लोग मीट को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं और वो फाइबर की क्वांटिटी कम कर देती हैं, तो अपना कैलोरीज इंटेक वो बढ़ा चुके होती हैं इन अ सर्टेन शेप. वो नान भी उस दिन मंगवा के खा रहे हैं, सुबह उठ के उन्होंने या वो मीठे चावल खाए होंगे या उन्होंने सेमियां खाई होंगी, और सुबह का जो नाश्ता है वो भी उन्होंने अच्छा कर लिया होगा. उसके बाद उन्होंने मीट की क्वांटिटी भी कंज्यूम ज़्यादा की होगी. और जब सेलिब्रेट ईद को कर रहे होते हैं तो हमारे रिलेटिव्स आ रहे होते हैं, हम कहीं और जा रहे होते हैं मिलने के लिए, हम मिठाई भी यूज़ कर रहे होते हैं. जब कैलोरीज इंटेक बढ़ा लेते हैं
तो वो हाइपरग्लाइसीमिया का सबब बनता है। मीट इज इटसेल्फ हाइपरग्लाइसीमिया का सबब नहीं बनता। तो इन लोगों में जिनको ईद के ऊपर हमें जो कि ऑलरेडी डायबिटिक हैं, हमें ये भी एडवोकेट करना पड़ेगा कि दे शुड यूज द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीट अलोंग विद वेजिटेबल सैलड और फ्रेश फ्रूट्स विदाउट इंक्रीजिंग द टोटल कैलोरीज इनटेक जो कि वो पहले ले रहे थे, जिसके ऊपर उनकी दवाई एडजस्ट हुई थी। तो दीज आर द फ्यू points that can be elaborated in the context of the consumption of meat at Eid al-Adha and the ideal amount of meat that can be used. Thank you. Over to you, madam. Okay, ji. Thank you, Dr. Tahir Saab. It was a lovely, great talk. और हमारे participants कुछ कम हैं क्योंकि obviously ईद का चौथा दिन है, यहाँ वहाँ गए हैं, शहरों से बाहर गए हैं, लेकिन we really enjoyed it. I can आपके लिए understand. क्वेश्चन भेजे हैं प्रोफेसर डॉक्टर रफीक खानानी साहब ने। जी, सबसे जी। पहले तो उन्होंने ये पूछा है कि जो ईटिंग ऑफ ऑर्गन्स हैं, फॉर इंस्टेंस ब्रेन, लिवर, हार्ट, किडनी, स्प्लीन, टेस्टिकल्स, इनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच ऑर्गन। इन्होंने तो लंग्स भी लिखा है, और हालांकि मैंने पता नहीं क्यों किसी को लंग खाते हुए देखा नहीं है आज तक। और उन्होंने कहा है कि how to use these organs to get the maximum benefit and reduce the adverse effect. Number 2, उन्होंने पूछा है कि क्या uricosuric medicines for a few days to prevent swelling of joint, is it recommended? The third question is, can we take cholesterol lowering agents which are statins in subject जिनका upper side of normal पे रहता है? And or is it better to increase the dose of these statins for the persons already on medications? So these are the 3 questions. Okay, we will answer it one by one. First, the use of urosemic drugs to control the uric acid level in those patients who have already gout and they want to consume the large quantity of meat. Prevention is better than cure. रादर देन कि हम उसे यूरिसिमिक ड्रग्स को यूज करना शुरू कर दें, सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि पेशेंट को बताना चाहिए कि आप क्वांटिटी कम रखें रादर देन कि आप उसे बढ़ा लें। लेकिन फिर भी चूंकि नॉर्मल जो हम कंज्यूम करते हैं आइडियली वो 100 ग्राम होता है, अगर हम 200 ग्राम कर रहे हैं तो फिर भी इफेक्ट आएगा। तो उस पर फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंटी गाउट मेडिसिन की डोज को बढ़ा लेना कोई ऐसा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जो कंजम्पशन ऑफ मीट है, सम टाइम वो जब हम गाउट की मेडिसिन की डोज बढ़ा लेते हैं, एंटी यूरिसिमिक ड्रग की डोज बढ़ा लेते हैं, फिर भी वो अपने सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है उन लोगों में जिनमें गाउट है। गाउट का मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम होते हैं, 2 वजह से आ रहा होता है। हम अगर इंडो पाक में देखें तो हमें अराउंड 5% मरीज ऐसे मिल जाते हैं जिनमें इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द मैक्सिमम डोज ऑफ एंटी यूरिसिमिक ड्रग, वो जो पेशेंट है उनका जो यूरिक एसिड लेवल है वो 6-7 के इर्द गिर्द रहता है एंड देयर सिम्टम्स आर बॉर्डरलाइन कंट्रोल। तो वो लोग जिनमें एक्सक्रीटरी डिफेक्ट है, जिन्हें प्रोबेनिसिड की जरूरत है, और अनफॉर्चुनेटली प्रोबेनिसिड पाकिस्तान में बड़े अच्छे से शॉर्ट हुई या स्मगल होकर मिल रही होती है, तो एक्सक्रीटरी डिफेक्ट वाले तो बिल्कुल एंटी यूरिसिमिक ड्रग की डोज बढ़ाने से अगर वो यूज कर भी लेंगे तो उन्हें कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। 95% लोगों में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम आ रहा होता है जो कि गाउट का सबब बन रहा होता है। तो ये जो लोग हैं इन्हें पहली एडवोकेसी तो यही होनी चाहिए कि दे शुड यूज 100 to 200 ग्राम ऑफ मीट, और अगर उससे ज्यादा वो यूज कर बैठे हैं फॉर अ 1 day और 2 day, उसके लिए तो नहीं है। अगर वो कंटिन्यूसली 3 से 5 दिन करते हैं तो वो डोज बढ़ा सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। नंबर 2, अगेन कि जो लोग जिन्हें डिसलिपिडीमिया है, क्या वो लोग स्टैटिन की डोज को बढ़ा लें? तो अगेन वो सेम ही आंसर रहेगा। अगर तो जो पेशेंट हैं वो उसे डाइटरी एडवाइस को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज फॉर द टाइम बीइंग, स्पेशली दोज पेशेंट्स हु हैव अंडरलाइंग इस्कीमिक हार्ट डिजीज और हु हैव द मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ अनस्टेबल एंजाइना, they should increase the dose of statin along with increase the dose of loprine aspirin, उसको भी 300 मिलीग्राम करना पड़ेगा, 75 मिलीग्राम से बढ़ाना पड़ेगा।
तो ये हो सकता है। अब एक यूज ऑफ द ऑर्गन्स, स्पेशली लीवर, किडनी, लंग्स, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एज सच अगर हम देखें तो जो लीवर है दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, वो आयरन का एक अच्छा सोर्स है उसके अंदर। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किडनी की बात कर लें, हार्ट की बात कर लें, लंग्स की बात कर लें, दे आर बीइंग कंज्यूम्ड एज अ मीट। और जो जो हमारा जो सबसे पुअर तबका है, जो खास लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहा है, यूजुअली दे केम टू द हाउसेस where the animals are being sacrificed and ask for the lungs और stomach, जिसको हम कहते हैं ओजड़ी, वो रिक्वेस्ट करके ले लेते हैं एंड दे कंज्यूम द लंग्स, और ओजड़ी को वो कंज्यूम करते हैं। एज सच इसका कोई डिसएडवांटेज तो इनका यूज करने का नहीं है, लेकिन ये किसी भी कोई हाई सोर्स, लीवर की तरह किडनी में भी आयरन की मिकदार आम टिश्यू से ज्यादा है। वो तमाम ऑर्गन जो कि ग्रे में है ना, उनमें आयरन की मिकदार की वजह से वो ग्रे कलर में आएंगे, तो उनमें आयरन की मिकदार तो थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन वो अगर आप 1 या 2 उसकी आपने मील ले ली या 3 मील ले ली, तो वो बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ द लीवर वो आयरन को सपोर्ट करता है। लंग्स ऐसा कोई सपोर्ट नहीं करता, वो मीट के तौर पे 1 से 2 मील हो गए। एज सच कोई लॉन्ग स्टैंडिंग एडवांटेजेस विद द यूज ऑफ 1 to 2 मील नहीं है। कॉन्टिन्यूस यूज का लीवर का इफेक्ट बहरहाल आयरन इंप्रूव कर देता है। जी, ओवर टू यू मैडम। Ji, Dr. Rashid Saab has raised his hand. So Rashid Saab, yes. over to you. यस, मेरा एक गिला है, एक कमेंट है, कोई क्वेश्चन है। गिला ये है कि ये इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें ये ईद से पहले होने चाहिए, अब तो हम बदतमीजियां कर चुके हैं बहुत सारी। तो कमेंट ये है कि सर मैंने एक जगह पढ़ा है कि ये जो ऑर्गन्स हैं, चूंकि ये यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई करते हैं, और खीरा जो है कुकम्बर, ये यूरिक एसिड को यूरिन में एक्सक्रीट करता है। तो अगर इनके साथ जैसे आपने बताया सब्जियां, फ्रूट वगैरह, तो स्पेशली अगर खीरा ज़्यादा खाया जाए तो ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है। तो क्वेश्चन ये है कि सर यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है अल्कलाइन यूरिन में, तो क्या हम गोश्त के साथ थोड़ा सा अगर ये मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट पानी में हल करके ले लें, तो क्या इससे यूरिक एसिड एक्सक्रीशन में हेल्प होगी हमें एक्स्ट्रा? जी, थैंक यू सर। जहाँ तक इशू है आपके गिले का, तो इट शुड बी डन बिफोर द ईद, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसी कोशिश करेंगे हम इसे ईद से पहले करें। सर सेकंड जो इसका पार्ट है कि जो खीरा है उसमें कम है, और उसको लेने से क्या इसके एक्सक्रीशन में बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। अब डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स ने जो यूरिक एसिड की मिकदार है डिफरेंट फूड आइटम्स में, उसको चार्ट आउट किया है। 90 से ऊपर उसने उसको रेड लेबल कर दिया, और 90 से नीचे उसने उसको अगेन 2 कंपोनेंट में, येलो और फिर ग्रीन में किया। तो जो खीरा है या डिफरेंट जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू, उनमें वो ग्रीन वाली लाइन में आ जाते हैं। तो खीरे में भी अराउंड 70 के करीब प्योरीन एंड पैरामिड डेरिवेटिव्स यूरिक एसिड अवेलेबल होता है। जो बिल्डिंग ब्लॉक है ईच एंड एवरीथिंग का, वो डीएनए है, और जो डीएनए बनता है वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। तो प्योरीन एंड पैरामिडीन्स जो हैं वो हर चीज़ में अवेलेबल हैं उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पे, सिर्फ क्वांटिटी कम है। 70 से नीचे है तो ग्रीन वाले शेड में आ जाएगा, 90 से ऊपर है तो रेड में चला जाएगा। मीट में जो चिकन मीट है उसमें 90 से ऊपर है, और जो मटन है उसमें 100 से ऊपर है, और जो बीफ है वो 110 से ऊपर चला जाता है। तो सिर्फ फिश क्वांटिटी में का फर्क है। खीरा एलिमिनेट नहीं कर पाएगा हमारे बॉडी से ना, लेकिन वो ऐड कम करेगा। कहाँ 120 ऐड हो रहा है और कहाँ पे 70 ऐड हो रहा है। अब दूसरा, बेकिंग सोडा को पानी में डाल के करें तो क्या वो एलिमिनेट कर देगा कि नहीं करेगा। सर जो एक्सक्रीटरी डिफेक्ट है, एक्सक्रीटरी डिफेक्ट में जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो टेक अप नहीं कर पाते, हमारी जो ग्लूमेरुलर मेम्ब्रेन है उसे फिल्टर नहीं कर पाती इनके यूरिक एसिड को ना, और उसकी वजह से हमें प्रोबेनिसिट ऐड करना पड़ती है जो उसके साथ अटैच करके उसे एक्सक्रीट करवाती है। अगर तो एक्सक्रीटरी डिफेक्ट है किसी में और 24 आवर यूरिनरी यूरिक एसिड लेवल किया है और वो 800 से कम आया हुआ है, तो इस मरीज में तो ना बेकिंग सोडा को हेल्प आउट कर पाएगा,
ना इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर को हेल्प आउट कर पाएगा, उसे हर सूरत पे प्रोबेनिसिड लेनी है। और ऐसे लोग अगर मीट की कंजम्पशन ज़्यादा कर लेंगे 70 ग्राम से ज़्यादा, तो उनमें सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे। और हम जब देखते हैं इन अवर ओपीडी, इन अवर इमरजेंसी, ईद के फौरन बाद, तो जो लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं गाउट के साथ, मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो होते हैं जिनमें हम जब 24 आवर यूरिक एसिड एक्सक्रीशन करवा के देखते हैं तो इनमें वो 800 से कम आई होती है, तो हम कहते हैं एक्सक्रीटरी डिफेक्ट था। तो जिन लोगों में मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट आ रहा होता है, प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स के, यूरिक एसिड के मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा होता, ये वो लोग हैं जिनमें हम इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर्स को भी सजेस्ट करते हैं कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन बेकिंग सोडे का एज सच कोई भी साइंटिफिक बीच में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ना होने के बराबर एज अ फिजिशियन मैं उसे सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर को सजेस्ट करूंगा, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन को करूंगा, और अगर फॉर द टाइम बीइंग वो अपनी यूरोसिमिक ड्रग्स को ज़्यादा लेना चाहे तो वो उसको मैं सजेस्ट कर पाऊंगा। थैंक यू सर। प्रोफेसर ताहिर साहब, यूं है कि मैंने विटामिन सी का पढ़ा है, क्या आपकी मीट की कंजम्पशन जब ज्यादा हो जाए, so you should take vitamin C. Can you shed some light on this? जी, तो जब आप विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन ई की बात करते हैं, तो दे हैव एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स। जब हम बात करते हैं कि जो जब एथ्रोमास बनते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना, तो जो हम जब एंटीऑक्सीडेंट विटामिन लेते हैं तो वो एथ्रोस्क्लेरोसिस को हार्ड करते हैं, वो फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं बॉडी में। तो एज सच वो मीट को डाइजेस्ट करने में या उसके जो इफेक्ट है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में, उसको में वो हेल्प आउट नहीं कर पाएंगे। वो जो उसका कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है डिसलिपिडीमिया की वजह से, एथ्रोस्क्लेरोसिस का, या जो फ्री रेडिकल जिस्म के अंदर बढ़ रहा होता है, एंटीऑक्सीडेंट उसको कम करने में मदद होती है। तो अगर हम इसको कंज्यूम कर भी लें और हमें ऑलरेडी अंडरलाइंग इस्कीमिक हार्ट डिजीज का कोई इशू चल रहा है, तो उस सूरत में एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो दे आर बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स। लेकिन अगेन जब तक डाइटरी मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं होगी, कंजम्पशन लो नहीं होगी, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप इस्कीमिक हार्ट डिजीज और अंजाइना और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर। थैंक यू। Okay, thank you, Tahir Saab. And there are many friends and are very dignified professors here on the forum. Professor Umar Ali Khan का मैंने अभी देखा है, LMDC मौजूद है, that means Majid Chaudhary Saab is here, Dr. Ayub is here, Anila Jalil is here, Momina Taqdees is here. So anybody with a question? जी मैडम, मुबशिर बोल रहा हूँ। I wanted to जी मुबशिर। जी, I wanted to like say a few things about taking soda and bicarbonates. They have high sodium content, so we don't recommend bicarbonate in quantities, and वो alkalosis भी कर सकते हैं, और फिर rebound acid production is a side effects of taking soda and bicarbonate dissolved in water, और फिर and all of this can also interact with medicine. So taking large quantities of these after having large quantities of meat, and if we consume soda, that can actually result in more complications. So the best will be taking maybe some herbal remedies such as fennel, saunf hai, ginger hai, chamomile hai, dandelion hai. These are the other possibilities to consume along with during these days regularly. Fantastic. Even lemon and Lemon, unsweetened lemonade exactly, madam. would be a good option. Gee, thank you so much, Dr. Mubashir. And on behalf of all the listeners over here and all the participants, I want to thank Dr. Tahir Siddiqui साहब। उन्होंने आज ईद के दिन में इतना हमें टाइम दिया, हमें समझाया, एंड वाकई ये हमसे गलती हो गई कि ये हमें ईद से पहले रखना चाहिए था। चलें, नेक्स्ट टाइम के लिए we are more informed and we will be wiser. Thank you all for attending. Anybody? Can I make a comment? Yes, please, Majid Chaudhary sir, please do so. Oh, don't worry. We continue to eat for many days after Eid, so I think it's still relevant. One question I wanted to ask Tahir Siddiq. I'm very proud that he was my house surgeon at Mayo Hospital,
And can you develop gout with normal uric acid levels? थैंक यू सर। सर मैं आपका सिर्फ हाउस ट्रेनिंग में आपका स्टूडेंट भी था फाइनल ईयर में। Right. Okay. जी सर, नॉर्मल यूरिसिमिक गाउट होते हैं कि जो नॉर्मल यूरिसिमिक गाउट हैं दे आर डिफिकल्ट टू डायग्नोज, एक्सेप्ट कि हमें डबल कंट्रास्ट सीटी यूज करना पड़ता है, बायर फ्रिजेंट उसके एक्सपीरियंस करके सनाविल फ्लूइड को हमें उसके देखना पड़ता है। जब हम से हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं तो बायर फ्रिजेंट उसके हमें नजर आते हैं। तो नॉर्मल यूरिसिमिक गाउट कैन एग्जिस्ट, और जो नॉर्मल यूरिसिमिक गाउट है आल्दो इसकी प्रोपोर्शन बहुत कम है इन अवर सोसाइटी, लेकिन यस ये एग्जिस्ट करते हैं और दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज एक्सेप्ट विद डबल कंट्रास्ट सीटी एंड जो एनालिसिस ऑफ सिनोवियल फ्लूइड। Okay. Thank you. Thank you, Tahir. Thank you. Okay, I think Rashid Saab has another question. Dr. Rashid, do you have another question because your hand is raised? यस यस, कई लोग ये गोश्त के साथ जब होती है एसिडिटी वगैरह तो उसके साथ पीपीआईज लेते हैं। तो पीपीआईज जो हैं दे ब्लॉक द एसिड, और एसिड तो एसेंशियल है गोश्त की डाइजेशन के लिए। तो ताहिर साहब ये कमेंट करेंगे कि गोश्त के साथ पीपीआई लेने से उसकी डाइजेशन तो अफेक्ट नहीं होगी? जो गोश्त के डाइजेशन है एक्चुअली जो प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है वो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस कर रही होती है ना। जो एसिड है वो उसे इमल्सिफाई तो जरूर करता है, फैट्स को उसे टेंडर करता है, लेकिन जो उसकी फाइनल डाइजेशन है वो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस नहीं कर रही। और जिन लोगों में एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है जब वो कंज्यूम कर लेते हैं मोर देन 200 ग्राम तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होती है। जिन लोगों में एसिडिटी का प्रॉब्लम चल रहा होता है, क्रॉनिक एसिडिटी का, तो उनमें वो ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं ये वाली चीज़ें हैं। जो फर्स्ट 45 मिनट्स हैं, फर्स्ट 45 मिनट्स में सफिशिएंट एसिड रिलीज हो चुका होता है जो हेल्प आउट कर देता है उसे टेंडर करने में, और फर्दर उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, जो उसकी फर्दर डाइजेशन है वो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस नहीं करनी है। तो आफ्टर 45 मिनट्स अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं एसिडिटी के तो उस सूरत में पीपीआई इस्तेमाल हो सकता है। या अगर Okay. क्रॉनिक एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो लोग जिनमें हर मील के बाद ही प्रॉब्लम आ जाता है वो लोग तो फिर 30 मिनट बिफोर मील लेते हैं। उनमें ऑलरेडी जो एसिड की सिक्रीशन है वो अबव द नॉर्मल होती है ना, ओवर एंड प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो स्टमक में स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए एसिड चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो पैंक्रियास है वो ऑलरेडी जो पार्शली डाइजेस्टेड मीट को डाइजेस्ट करते हैं। जी। वो एक्चुअली जो स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होती है वो उसे टेंडर करता है, उसे सेग्रीगेट कर देता है फाइबर्स को ना, और जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस हैं वो उसे आगे फर्दर उसे तकसीम कर देती हैं हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड में ना। तो जो इनिशियल पार्ट है वो तो 45 मिनट्स में एसिड की सिक्रीशंस मोर देन सफिशिएंट होती हैं, और जो आइडियल स्टे है स्टमक में वो भी 45 मिनट्स होना चाहिए। फैट की वजह से जो कि कुर्बानी के जानवर में फैट ज़्यादा होती है तो थोड़ा डिले ज़्यादा आ रहा होता है स्टमक की एम्प्टी में। अगर 45 मिनट के बाद सिम्टम परसिस्ट करते हैं और वो सिम्टम इतने सीवियर हैं तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेयर कर रहे हैं, इस सूरत में वो इस्तेमाल करें, फौरी तौर पे इस्तेमाल ना करें। Okay, Ji. Thank you so much. Dr. Mubashir Iftikhar has joined us from Malaysia, and he is the you, ma'am. host today instead of Mulazim Saab. So I give him on to him for a vote of thanks. Thank you so much, sir, for presenting very nice detail about overeating or eating large quantity of meat. And thank you all for joining us on this busy day. And over to you, madam, for final comments. The final comments are: have a great fourth day, eat lesser meat, please, have more unsweetened lemonade and go for a walk. And have a very happy Sunday. Thank you everyone, especially thanks to Dr. Tahir Siddiqui Saab. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.